All right, Rahul Gandhi has slammed Bhagwat's Ram Mandir remark, says RSS chief. Bhagwat criticized the constitution. Rahul Gandhi says RSS chief insulted freedom fighters. Pran Pratishtha was true independence, is what was said by the RSS. Remember, Mohan Bhagwat had said it and had said that invaders destroyed temples for years. RSS had said invaders wanted to destroy our true self, and true independence was achieved by India when the Pran Pratishtha ceremony for the Ram temple took place. We are getting a new headquarters at a very particular time. I think it's quite symbolic that yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. This building, it is not an ordinary building. It has emerged from the soil of our country, and it has emerged as a result of the hard work and sacrifice of millions of people. The fruit of that movement, which was the Constitution, which was essentially attacked yesterday by Mr. Mohan Bhagwat when he says that the Constitution was not the symbol of our freedom. But also after that, thousands of our workers died in Punjab, thousands of our workers died in Kashmir, thousands of our workers died in the Northeast. And so this party has stood for a particular set of values. And we can see those values in this building. All right, listening to what Mohan Bhagwat had said, which has in fact invited flack from the Congress today. Let's take a listen. प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहते हैं, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। Vinod Bansal of the VHP is now joining us. Vinod Bansal, how do you look at this statement that has been made by the leader of the opposition, Rahul Gandhi, saying that this is an insult to freedom fighters? We achieved independence when we did. And to say that India achieved independence only when the Pran Pratishtha ceremony took place is wrong. You see, this is the Congress who has boycotted the Pran Pratishtha ceremony. It is the Congress which cannot understand the sentiments of the people of the country. This is the Congress which is anti-Hindu, anti-Ram, or anti the constitution of the country. However, they say that we are with the constitution, but country know that what the behavior they have with the father of the constitution, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, whose name has been, the word Ramji has been the theft about from his name actually. आप मुझे बताइए, महात्मा जी का नाम लिया, गांधी जी का नाम इन्होंने चुराया, और अपने अंबेडकर जी के नाम में से राम जी को चुरा लिया। उनको दो बार हरा दिया इन्होंने इलेक्शन में। आप देखिए, जब अपने प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी सोमनाथ मंदिर की, तो उस समय इनका कांग्रेस का क्या एटीट्यूड था कि राष्ट्रपति भी उनके प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न हो, उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में। इसीलिए ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया, और राम मंदिर न बने इसके लिए कांग्रेस ने सारा एड़ी चोटी का दम लगा दिया। बिकॉज इटालियन माताजी जो है ना, जो देश के अंदर आई थी, तभी से लेकर के और ज्यादा कांग्रेस एग्रेसिव हो गई अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द कंट्री एंड द सेंटिमेंट एंड द कल्चर एंड द कंट्रीज वैल्यू ऑफ द कंट्री एक्चुअली। But Vinod Bansal, I would like to ask, the specific comment of Mr. Gandhi was कि ये कहना कि
फ्रीडम हमें तभी मिला था जब प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी हुई थी और पहले इंडिपेंडेंस नहीं हुआ, तो ये फ्रीडम फाइटर्स की तरफ एक इंसल्ट माना जाएगा। नहीं जी, देखिए ये कांग्रेस, मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस समझ नहीं सकती पूजनी सरसन चालक जी के बयान को। बात राम भक्तों की हो रही है, राम जन्मभूमि की हो रही है, उनकी बयान को राम भक्त तो समझेंगे, रामद्रोही नहीं समझ सकते ना जी। जो सोरोस के भक्त हैं वो आखिरकार राम जी के भक्त की बात को कैसे समझ सकते हैं, ये भी कांग्रेस को जनता जानती है इस बात को। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था द ट्रू फ्रीडम वी गॉट ऑन द डे व्हेन दी राम टेम्पल वाज दी प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी वाज हेल्ड। डेफिनेटली पिछले 6 दशकों तक कांग्रेस ने हिंदू समाज, हिंदू जनमानस और भारतीय संस्कृति का जो अपमान किया, जिस तरह से हिंदुओं को आतंकवादी साबित करने की कोशिश करी, भगवा को और संतों को अपमानित करने की कोशिश करी। अभी नांदेड़ कोर्ट का वर्डिक्ट आया है ना जी, उसमें साफ साफ पूरे को पूरे 10 लोगों को अक्यूज को बरी कर दिया। बिकॉज कांग्रेस ने जो है जिस तरह के षड्यंत्र रचे थे, उन सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश हो गया। ये कहते तो हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने वाले हैं, वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करने वाली जो कांग्रेस है ना, उसके प्रियम्बल तक को चेंज कर दिया, दैट टू इन दी अमिड द इमरजेंसी, और जब पार्लियामेंट वाज नॉट इन पावर। तो कांग्रेस ने तो कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या की है, देश की जो सांस्कृतिक जीवन मूल्यों की हत्या की है, हिंदुओं के ऊपर आघात किए हैं और हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक बना के कांग्रेस ने रखा था। आज वास्तव में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो हिंदू समाज जागा है, हिंदू जनमानस जागा है, इसलिए कांग्रेस अब भागने की कगार पर है। बट डीएमके क्या सोचता है इसके बारे में? विनोद बंसल बने रहिए।